Fine. So this is basically the third exercise, basically the finding the sum of an AP. So whenever you find the sum of an AP, whenever you are finding the sum of an AP, so what happens basically in a sum of an AP, that suppose there is a sequence given. Suppose I am telling that in a class there are 56 students. The student of roll number 1 scored 2 marks, roll number 3 scored 4 marks, then 4 scored 6, 8, 10, 12, like this. So if I ask you that what will be the sum of the total marks scored by the 56 students, 56 स्टूडेंट्स के ने जो स्कोर किया, टोटल मार्क्स कितने होंगे? तो आप एक एक को ऐड 2 + 2 + 2 + 2 प्लस ऐसे करते जाओ, 2 + 4, 4 + 6, 4, 6 + 8, ऐसे करोगे तो बहुत समय हो लगेगा. So how to add the total? So this formula, the formula which you are going to study now, will give you a simple way to how to find the sum of an AP. If the given number of terms are given there, how to find the sum. So let's see the formula. What is the formula? That's very interesting and very simple formula. So on the screen you can see the formula, as I will just try to zoom it so that you can see the formula of the formula which I'm talking about. So this is the formula on your screen. You can see. Okay. So on your screen, the formula which you are able to see is the sum of first n terms of an AP. Okay, the sum of first n terms of an AP is given by, this is the formula to find the sum of an AP. Okay, this is the formula to find the sum of an AP, right? So S is the symbol for sum, n by 2, 2a, n minus 1 into d. Now you will be, if you just observe the formula carefully, you will understand that you know this formula. How? If you see this much, a plus n minus 1 into d, this is the formula of an. N number of terms find करने का formula. An equals to a plus n minus 1 into d. This is the formula, okay, to find an. Okay, और ये सिर्फ इतना ऐड हुआ है, इसीलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं. Like you can see below, we have written s equals to n by 2 into bracket a plus an. क्यों? कभी कभी an अगर आपको दिया ही हुआ है तो इसे पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट an की वैल्यू पुट कर दो. an मतलब nth टर्म. मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, आपने AP फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व किया है, तो आई डोंट थिंक दैट किसी को प्रॉब्लम होगा कि a क्या होता है, n क्या होता है, an क्या होता है. ये सब फाइंड करने में किसी को दिक्कत नहीं होगी अगर आप लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो. ओके, तो ये चीजें आपको फाइंड करनी है. ओके, अब सम में इन चीजों को यहाँ पे पुट करना है. तो ये फॉर्मूला क्यों है कि कभी कभी an की वैल्यू गिवन हो तो आप डायरेक्टली ये पुट करो, ये सब पुट करने की जरूरत नहीं है, n-1 d ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं. यू कैन पुट डायरेक्टली. ओके, अंडरस्टूड. आप डायरेक्टली इनको पुट कर सकते हैं. फाइन. अब कभी कभी आपको ऐसा गिवन हो कि एक सीक्वेंस में आपको पता हो कि मार्क्स स्टूडेंट्स के दिए हैं और जो लास्ट रोल नंबर है उसके स्टूडेंट का मार्क्स है 100. तो आपको क्या पता है? an पता है. an कितना है? 100. तो उस केस में आप डायरेक्टली an पुट कर सकते हैं. मतलब जो लास्ट स्टूडेंट का जो नंबर है या मार्क्स है वो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जिसको किसी फॉर्मूला में an की जगह पे क्या पुट करते हैं वो लोग? l. and in few questions in place of an they put l. ओके, तो l मतलब लास्ट टर्म. लास्ट टर्म अगर गिवन है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा s इक्वल्स टू n by 2 into bracket a plus l. ओके, तो ये है आपका फॉर्मूला. s इक्वल्स टू n by 2 into bracket 2a, a की जगह पे 2a plus n minus 1 into d. so this is the formula of sum. ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो जाके आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा. तो आगे जाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं. Okay, let's take one example to solve. So यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है. Okay, so वो क्वेश्चन पे नहीं जाते, डायरेक्टली हम इक्वेशन पे देखते हैं. तो उस क्वेश्चन के हिसाब से a गिवन है 100, d 50, n 21. आपको सम फाइंड करना है. तो s का फॉर्मूला, इसको s लिखा होगा, कहीं पे s n भी लिखा होता है. ठीक है,
तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 21 टर्म्स का सम निकालना है। n का मतलब क्या होगा 21 टर्म्स। ओके, अब पुट करते हैं वैल्यू। हमको n 21 गिवन है तो n की जगह पे 21 पुट करेंगे अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a, फर्स्ट टर्म कितना है 100, तो 2 into a दैट इज यहाँ पे पुट करेंगे, then n 21 minus 1 into d is 50। देखो वैल्यू पुट कर दिया 21 upon 2 2a n minus 1 into 50। if you solve it 21 minus 1 क्या हो जाएगा 20, 20 into 50 क्या होगा 1000, 2 into 100 200। ओके, and 21 upon 2। बस अब इन दोनों को पहले ऐड कर दो, सीक्वेंस याद रखना, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करना है, बॉडमास रूल फॉलो करना है। देखो बेटा यहाँ पे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। इफ यू आर नॉट मल्टीप्लाइंग दीज टू टर्म्स, आप पहले इसको ऐड कर देते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर सॉल्व करो। ठीक है, अगर पहले कर दोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बॉडमास रूल जो है आपका, बॉडमास का जो रूल होता है आई होप आप सबको पता है कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड हो तो डिवाइड पहले करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ये बॉडमास रूल को फॉलो करोगे नहीं तो आपका मैथ्स का क्वेश्चन क्या हो जाएगा रॉन्ग। इवन कैलकुलेटर भी बॉडमास रूल फॉलो करता है। ठीक है, इसलिए कैलकुलेटर में सम क्वेश्चन से रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं। ओके, सो 21 अब 200 प्लस 1000 क्या हो गया 1200। सो अब डिवाइड कर दो तो 2 डिवाइडेड बाय 1200 करोगे तो 600 आ जाएगा, 600 into 21 करोगे तो 12600। ये आया आपका सम। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है। व्हाट यू नीड टू डू इन एट लास्ट, you to write the statement. So the amount of the money collected on her 21st birthday is rupees 12600। Okay, understood। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको पूरा पूरा क्लियर हो। ओके, नाउ एग्जांपल 11, जैसे वहां पे मैंने पिछले एक्सरसाइज में सारे एग्जांपल्स बता दिए थे, मैं इधर भी एग्जांपल समझा देता हूँ। ठीक है, the sum of first 22 terms of an AP, find the sum of first 22 terms। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए n 22, फर्स्ट 22 टर्म्स। ओके, तो a कितना हुआ 8, d कितना होगा माइनस कर दो दोनों को, तो 8 आपके डिफरेंस कैसे मिलता है a2 minus a1, मतलब 3 minus 8 करोगे तो कितना आया -5। कभी ऐसा मत कर देना a1 minus a2 मत करना, a1 में से a2 माइनस करोगे मतलब 8 minus 3 क्या होगा +5, +3 minus 8 करोगे तो क्या आएगा माइनस में, वो ध्यान रखना। ओके, क्योंकि माइनस प्लस से बहुत मिस्टेक होगा। then this is the formula s equals to n by 2, okay, into bracket 2a plus n minus 1 into d। okay, ये हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कीजिए। ओके, जस्ट पुट द वैल्यू। व्हेन यू आर पुटिंग द वैल्यू, आपके पास क्या है n है 22 upon 2, 2a मतलब 8 into a आपका 8 है तो 2a मतलब क्या होगा 8 2 जा 16, देन इन ब्रैकेट, ओके, इन ब्रैकेट n minus 1 मतलब 22 minus 1 कितना होगा 21, और डिफरेंस कितना है -5। ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस 21 into 5, 21 into 5 होता है 105, तो प्लस माइनस माइनस तो -105, और यहाँ पे क्या है 16 है। फाइन, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, 16 minus 105 -89, और -89 into 11 कर दो तो -979। तो फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ईपी का जो सम है वो है -979। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। So the next example on the screen is if the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term। okay, तो ये क्वेश्चन में अब पिछले वाले एक्सरसाइज का भी यूज होगा, तो कैसे होगा चलो देखते हैं। यहाँ पे हमको जो गिवन है पहले वो देख ले। द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, पहले 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 105, पहले 14 टर्म्स का सम गिवन है एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। फाइंड द 20th टर्म, 20 टर्म फाइंड करना है, मतलब हमको क्या फाइंड करना है A20 फाइंड करना है। A20 फाइंड करने के लिए हमको पता है कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए, A, ओके, और D। ओके, तो A तो गिवन है, D फाइंड कर लेंगे। D कैसे फाइंड करेंगे, इधर से। तो 14 टर्म्स ऑफ एन AP is 105, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे S14 कितना है 105, तो N कितना हो गया 14, A कितना हो गया 10। विल पुट इन दिस फॉर्मूला। ओके, फर्स्ट विल पुट इन दिस फॉर्मूला। Sn की जगह पे क्या आ जाएगा 1050, n by 2 मतलब 14 upon 2, 2a मतलब a कितना है 10, तो 2 10s are 20,
n माइनस वन, मतलब n कितना है 14, 14 माइनस वन कितना हुआ 13, और d है तो d। ओके, नाउ अब ये 2 को इस साइड ले जाओ तो 1050 इंटू 2 हो जाएगा, और ये 14 नीचे आ जाएगा तो डिवाइड बाय 14। ओके, मैं दिखा रहा हूँ, देखो क्या होगा 1050, या फिर ऐसा ही कर दो डायरेक्ट। देखो यहाँ पे एक चीज कर देते हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं। ओके, पहले इसको कट कर दो, 2 7 जा 14, अब ये 7 उधर लाओगे तो 7 नीचे आएगा तो 1050 अपॉन 7, ओके, इक्वल्स टू 140 प्लस 91d। अब क्या करोगे आप, इससे इसको डिवाइड कर दोगे, यू आर गोइंग टू डिवाइड। ओके, तो 7 1 जा 7, 7 आपका यहाँ पे 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7, 3 5 जा 5 से 35 0। ओके, तो 7 150 जा 105 होता है, इधर क्या बचा 150 बचा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 140 इस साइड ले आओ, तो 150 माइनस 140 इक्वल्स टू 91d। ओके, बस माइनस कर दो, 10 इक्वल्स टू आपका 91d। ओके, इस तरह से हो जाएगा। फाइन, आगे फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं आप। ओके, चलो आगे देखते हैं, इन्होंने सॉल्व किया है तो डिफरेंस कितना आया, 10 आया। ओके, बिकॉज यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्ट किया जो हम लोगों ने, सॉरी जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, जस्ट यहाँ पे क्या हुआ। ओके फाइन, जस्ट ओके, व्हाट दे हैव डन, यहाँ पे मैं आपको बता दूं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो, क्या हुआ है हमने जो किया उसमें डिफरेंस क्यों आया, देखो यही होता है सिली मिस्टेक। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये 140 नहीं आएगा, हमने जो किया क्या किया, फिर से दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। हमने क्या किया, 2 7 जा 14 कर दिया, हमने सिंप्लीफाई करने के लिए 7 नीचे ले आए, 7 से डिवाइड करते तो कितना आता है 150 आता है। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 150 आता है 7 से जब डिवाइड कर देंगे तो इधर बचेगा 20 प्लस 13d। क्यों 13d बचेगा, क्योंकि इन्होंने जो लिखा है ये 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, तब 7 20 से 140 होता है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 20 इस साइड ले आओ तो 150 माइनस 20 इक्वल्स टू 13d। 150 में से 20 माइनस हो तो कितना आएगा 130 इक्वल्स टू 13d। देन 13 को आप नीचे ले आए बेटा, तो 130 अपॉन 13 कितना होगा 10, d इक्वल्स टू 10। फाइन, उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से किया तो कंफ्यूज नहीं होना है उस चीज को लेकर, ठीक है। तो आंसर 10 ही आएगा, देखो डिफरेंस कितना आ गया 10, यू गॉट द डिफरेंस एज 10। ओके, डिफरेंस 10 आ गया, d मिल गया, a आपके पास था ही, तो अब a20 फाइंड करें 20 टर्म, तो उसका फॉर्मूला पुट कर दो, a20 का फॉर्मूला क्या होगा, a20 is going to be a20 equals to a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d, ये जो हमारा an का फॉर्मूला था। a20 मतलब ये आपके पास a है कितना है 10, 10 20 माइनस 1 मतलब n माइनस 1, n कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी कितना मिला 10। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 20 माइनस 1 क्या होगा 90, 19 19 इंटू 10 190, 190 प्लस 10 200, तो 20 टर्म इज 200। ओके, हो गया सॉल्व। नाउ एग्जांपल 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी इज, हाउ मेनी टर्म ऑफ एन एपी इज 24 21 एंड 18, कितने ऐसे टर्म्स होता है, तो 824 कितने होंगे, सम बोल रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी must be taken that their sum is 78, 78 सम पहुंचाने के लिए कितने टर्म्स होने चाहिए, तो टर्म्स मतलब n, n फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपको Sn गिवन है, n फाइंड करना है, a आपको कितना है 24, डिफरेंस कितना होगा 21 माइनस 24, ओके करोगे तो डिफरेंस आया 3, Sn 78, a 24, आपको फाइंड करना है n। नाउ पुट इन दिस फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज। ओके, तो वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे तो ये बच गया n खाली बच गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो ध्यान देना आपको, सॉल्व कर दो बहुत आसान, सिम देखो ये मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो -3n और माइनस माइनस 3 इंटू 3, 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 48 कितना होगा 51,
-3n, ओके। अब इस n/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो n/2 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, कैसे किया है इन्होंने, मैं बताता हूँ। देखो 78 इक्वल्स टू, अब आपने 58 यहाँ पे क्या हुआ, आप जब मल्टीप्लाई करते हो इसको, मैं वो भी बताया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये स्टेप क्या कैसे आया। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 48 है आपके पास, यहाँ पे 48 प्लस, अब ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा, -3n माइनस प्लस 3, 48 प्लस 3 कितना होगा, 51 एंड 3n, ओके फाइन। 58 प्लस आपका होगा 51 और यहाँ पे आ गया आपका -3n, ओके। ये यहाँ से आया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जब ये आ गया आप 2 को उस साइड ले जाओ, ओके। 78 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 156, ओके ठीक है। 78 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 156, 156 हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, ये n को किससे मल्टीप्लाई करना है, 51 माइनस 3n, तो क्या हो गया 51n माइनस, अब मल्टीप्लाई करोगे 3n से तो क्या होगा 3n स्क्वायर, ओके। इस स्टेप के बाद ये स्टेप आया और फिर इसकी ये स्टेप आया, तो ये आ गया आपका इक्वेशन। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ लिख दो, तो ये क्या बन गया, एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करो, देखो तीनों में 3 कॉमन है, 51 में भी 3 आता है, 156 में 3 बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52। आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेने से इक्वेशन क्या हो जाता है, सिंपल। तो 3 निकाल दो बाहर कॉमन, तो 3 निकालोगे यहाँ से तो क्या बचता है n स्क्वायर, यहाँ पे 17 3 से 51 होता है तो 17 बच गया, यहाँ 52 इंटू 3 होता है 156, तो 52 आ गया, फिर 3 इस साइड गया तो 0 डिवाइड बाय 3 इज 0। तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या मिला, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52। अब इसको स्प्लिट कीजिए, सो व्हेन यू विल स्प्लिट इट आउट, तो आपको क्या मिलेगा, 2 वैल्यूज मिलेंगी, ओके। यू आर गेटिंग टू गेट द 2 वैल्यूज, ओके। आपको 2 वैल्यूज मिली, n इक्वल्स टू 4 and और 13, ओके। क्या मिला, n इक्वल्स टू 4 और 13। अब इसमें से चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कौन सी वैल्यू सकती है, ओके। तो फॉर बोथ द वैल्यूज ऑफ n आर एडमायरेबल सो दैट द नंबर ऑफ द टर्म्स इज 4 and 16। तो क्या बोला, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन सो देयर सम इज 78। तो दोनों 2 टर्म्स में से कौन सा है आप चेक करके देख लो, ओके। अंडरस्टूड, क्लियर। तो आपको चेक करके देख लेना है, फिर आपको उसमें चेक कैसे करेंगे, n की वैल्यू यहाँ इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। n की वैल्यू पुट करो, जिसको पुट करने से 78 आता है वो आपका आंसर है, ओके क्लियर। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, फाइन। अब देखो यहाँ गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव टर्म्स ऑफ इंटीजर उसका निकालना है आपको। तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 1000 में कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 सीक्वेंस में, तो 1000 तक जाना। ये आपको क्या गिवन है, 1000 टर्म्स, मतलब लास्ट टर्म आपको जो है गिवन है, ओके। तो आप डायरेक्ट AL वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, SN इक्वल्स टू n/2 इंटू AL। A क्या हो गया 1, लास्ट टर्म क्या हो गया 1000, n क्या है 1000 अपॉन 2, बस फाइंड करो, सॉल्व करो, ओके अंडरस्टूड। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, ओके क्लियर। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज सम वाला, ओके ठीक है। इसको यूज करके आपको सॉल्व करना है, फाइन। सो प्लीज डू स्टार्ट द एक्सरसाइज, स्टार्ट सॉल्विंग, इट्स सिंपल। बट सबसे इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थर्ड क्वेश्चन के ये 10 क्वेश्चंस हैं, बिकॉज ये 10 क्वेश्चंस जो हैं सब अलग अलग हैं एक दूसरे से, तो एक भी मिस नहीं करना है, ओके। बट सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा सेम फॉर्मूला पे है, ओके राइट। सो आपको पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना है, काफी लंबी एक्सरसाइज है बट सब सेम क्वेश्चंस पे ही है, ओके। तो इसको सॉल्व करना है आपको, आपके प्रॉपरली प्रॉपर वे में एकदम इसको सॉल्व करना है। जो नहीं आता अंडरलाइन इट, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू टू सॉल्व, ओके। बट यहाँ पे आपका जो है चैप्टर खत्म होता है, यही तो फॉर्मूलाज हैं, बहुत सिंपल है। बट शांति से आप घर पे बैठ के इसको सॉल्व कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चैप्टर, एंड इवन आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम, फाइन अंडरस्टूड।